حضرت مولانا امجد صاحب ندوی سے میں درخواست گزار ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنی قیمتی بیان سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ میں حضرت والا کا استقبال ان 4 مصرے کے ساتھ کرتا ہوں کہ تیری یکتائی ہر ایک رنگ پہ چھائی ہے، کہ تیری یکتائی ہر ایک رنگ پہ چھائی ہے، پورا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے، اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگرے تھام کر بیٹھ حضرت کی باری آئی ہے۔ 5 سے 10 منٹ کے اندر اپنے اظہار خیالات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ ماشاءاللہ جتنے بھی بچے نے حفظ قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، شریف بھائی کے اور بہو بھائی کے طرف سے سب بچے کو گھری انعام دیا گیا ہے، اللہ انہیں سلامت رکھے۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم صدق اللہ العظیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم رواه ابن ماجہ۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواہ البخاری۔ اسٹیج پر تشریف فرما موقر و محترم استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا کفیل احمد صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، استاذ دارالعلوم ندوۃ العلماء ہمارے بیچ تشریف فرما ہے، جو کہ اس وقت ملحقہ مدارس کے شعبے کے انچارج بھی ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی متواضع تواضع پسند انسان ہے، اور اسٹیج پر تشریف فرما تمام علماء اکرام، اس ادارے کے بانی و ناظم جناب قاری وحید الزما صاحب فرقانی، اسی طریقے سے قاری احترام الحق صاحب رحمانی، مولانا اسد عالم صاحب ندوی، مولانا حامد صاحب ندوی، مولانا توحید صاحب قاسمی، حنظلہ شمس، کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں، کس کس کا نام لوں کس کس کو چھوڑ دوں، جو ذرہ جہاں ہے وہیں آفتاب ہے۔ اس لیے جس کا نام آ گیا اور جس کا نہیں آیا وہ اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، بلکہ ہر شخص برابر ہے، اللہ نے سب کو انسان بنایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز طلباء، آج کی یہ محفل اور آج کا یہ جلسہ دستار بندی کے نام سے منعقد ہو رہا ہے، جس میں ہم اور آپ تشریف لائے۔ بڑی ہی بابرکت محفل ہے، مبارک محفل ہے اور مبارک گھڑی ہے یہ۔ میرے محترم، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے۔ آپ جب قرآن کا مطالعہ کریں گے، آپ جب قرآن پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے تمام قرآنی آیات میں سب سے پہلی آیت جو نازل فرمائی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت عرب کے درمیان جو جہالت معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی، تاریکی تھی، انارکی تھی، اور ہر طرف ایک ایسا ماحول تھا شراب اور جوئے کا، طرح طرح کی برائی
उस समाज में पाई जा रही थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शराब को मिटाने पर कोई आयत नाजिल नहीं फरमाई। इसी तरीके से जुआ बहुत ही ज़्यादा आम था उस मुआशरे में, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुए के खात्मे के ताल्लुक से कोई आयत नाजिल नहीं फरमाई। बहुत सारी बुराइयां उस मुआशरे में जो है आम थी, लेकिन किसी बुराई के ताल्लुक से कुरान की आयत नाजिल नहीं हुई। सबसे पहली जो आयत नाजिल हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म के ताल्लुक से वो कुरान की आयत नाजिल फरमाई। इक़रा, अल्लाह ने फरमाया पढ़ो परवरदिगार के नाम से। जाहिर सी बात है, ये समझ में और अक्ल के खिलाफ बात है कि समाज में जुआ आम है, शराब आम है, लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, रिश्वतखोरी है, ज़िना आम है, तरह तरह की बुराइयां हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को शराब के ऊपर, उसके खात्मे पर, जुए के खात्मे पर या और तमाम बुराइयों के खात्मे पर कोई आयत नाजिल करनी चाहिए थी। ये एक आलिमाना सवाल है। ले तो उसका जवाब ये है कि क्यों आखिर इल्म के ऊपर यह आयत नाजिल फरमाई। जाहिर सी बात है, अल्लाह हकीम व खबीर है। अल्लाह जो मसलिहत को जानता है, वो हिकमत का जानने वाला है, वो तमाम राज का जानने वाला है। अल्लाह ने फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़ो अपने परवरदिगार के नाम से। जाहिर सी बात है कि जब इंसान में इल्म आएगा, जब इंसान में अच्छाई बुराई की तमीज़ आएगी, जब इंसान एजुकेटेड होगा, जब इंसान में शिक्षा होगी और जब इंसान तालीम याफ्ता होगा, तो वो शराब से भी दूर भागेगा। जब उसको मालूम होगा कि शराब हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है, ये मनशियात है और ये हमारे मुआशरे के लिए भी हलाकत का सबब है, वो शराब से कोसों दूर भागेगा। इसी तरीके से जैसे उसको मालूम होगी कि लड़की रहमत है, अल्लाह ने इसको रहमत बनाकर उतारा, तो लड़कियों को जिंदा दरगोर नहीं करेगा। जैसे उसको मालूम चलेगा कि जुआ हराम है, जब वो कुरान पढ़ेगा तो वो जुए को भी छोड़ देगा। जब वो पढ़ेगा कि झूठ बोलना हराम है, वो उसको भी छोड़ देगा। इसी तरीके से जब उसको मालूम होगा ज़िना हराम है, वो उसको भी छोड़ देगा। पता चला कि कुरान की सबसे पहली आयत गारे हिरा में जिस आयत का नुज़ूल हुआ और जिस आयत को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे अथर पर जनाब हज़रत जिब्रील के ज़रिए से नाजिल किया गया, वो आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ है। क्यों सबसे पहली आयत इल्म के ऊपर नाजिल की गई? दुनिया तो आज कह रही है कि इल्म हासिल करो, इल्म के मैदान में आगे बढ़ो। मुसलमानों के नबी, बल्कि पूरी दुनिया के नबी, वो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं, वो सिखों के भी नबी हैं, वो यहूदियों के भी नबी हैं, वो नसरानियों के भी नबी हैं, वो जैनियों के भी नबी हैं, वो बुद्धिस्टों के नबी हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो नबी कुल जहां के लिए नबी हैं, वो पूरी इंसानियत के लिए नबी हैं, वो जिन्नातों के भी नबी हैं, वो चरिंद परिंद कुल मखलूक़ात के नबी हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं हैं। उस नबी के कल्बे अथर पर इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल फरमाई। क्या हमने कभी गौर किया कि जिस समाज में जब इल्म आता है तो वही समाज तरक्की करता है? आज जगह जगह पर मदरसे, जगह जगह पर तालीमी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां खुली हुई है और स्कूल के अंबार लगे हुए। क्यों? लोगों को मालूम हुआ कि जब इंसान पढ़ेगा तो वही आगे बढ़ेगा। सबसे पहला टीचर और सबसे पहला मुअल्लिम कौन है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। सूरह बकरा में आप पढ़िए, वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत आदम को सबसे पहला इल्म सिखाया कि तमाम मखलूक़ात का, तमाम कायनात का इल्म दिया। पता ये चला सबसे फर्स्ट टीचर, पहला उस्ताज वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है और पहला तालिब इल्म वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है और हजरत आदम के वास्ते से हम सब तालिब इल्म हैं। मेरे दोस्तों, अभी एक रिवायत पेश की गई इब्ने माजा की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, इल्म दीन का हासिल करना, इतना इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और लड़कियों पर फर्ज है। जिस इल्म के जरिए से वो नमाज को अदा कर सके, जिस इल्म के जरिए से वो रोजे और तहारत के मसाइल को जान सके, जिस
को पढ़कर वो अपने सही अकीदे को पहचान सके, अपने ईमान को पहचान सके और अपना तारुफ बहैसियत मुस्लिम करा सके। इसलिए कुरान में जितना इल्म पर जोर दिया गया, खुद कुरान में एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना यअलमून, क्या पढ़े हुए लोग और जो अनपढ़ हैं वो बराबर हो सकते हैं? कभी बराबर नहीं हो सकते। इसलिए मुसलमानों को इल्म हासिल करना बहुत जरूरी है। जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले सुफ़े नबवी के चबूतरे से उमर फारूक को पैदा किया, उसी सुफ़े नबवी में पढ़कर अबू बकर सिद्दीक जो सदाकत के पैकर बने, उमर फारूक जो अदालत के पैकर बने, उस्मान गनी जो हया और सखावत के पैकर बने, हजरत अली मुर्तजा जो शुजाअत के पैकर बने, साद बिन अबी वक्कास जो जुरत के पैकर बने, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जो खलीफा नहीं लेकिन खलीफे खामिस कहा जाता है, इंसाफ की मिसाल उसकी दी जाती है। मेरे दोस्तों, आज क्या बात है, आज हम पढ़ने में पीछे रह गए। जिस कुरान की पहली आयत जिसमें इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी कहा गया और जिसके बारे में कहा गया आप पढ़िए, लिटरेचर का मुताला कीजिए तो आपको मालूम होगा। स्टेज पर अहले इल्म बैठे हुए हैं, इसलिए फरमाया एक यहूदी और एक नसरानी ने लिखा और लिटरेचर के अंदर लिखा, क्या लिखा? एजुकेशन इज लाइक अ बैकबोन फॉर अ ह्यूमन सोसाइटी। तालीम जो है, शिक्षा, वो इंसानी समाज के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। जिस तरीके से एक इंसान रीढ़ की हड्डी के बगैर चल फिर नहीं सकता है, खड़ा नहीं हो सकता, कोई कामकाज नहीं कर सकता है, मोहताज और मिस्कीन तरह लेटा रहेगा, उसी तरीके से जिस समाज में, जिस कौम में, जिस मुआशरे में तालीम नहीं होगी और जो है वहां पर शिक्षा नहीं होगी और एजुकेटेड वहां के लोग नहीं होंगे, उनका इस्तेसाल होगा, उनका शोषण किया जाएगा, उसको दबाया जाएगा। जाहिर सी बात है, मैं अपने मौलिक अधिकार को, बुनियादी हुकूक को जो संविधान ने दिए उसका भी जानना जरूरी है। संविधान ने आपको राइट टू फ्रीडम दिया है, आजादी का इख्तियार दिया गया है। आप जिस स्कूल में, जिस मदरसे में पढ़ना चाहें, जिस ओहदे पर फायज होना चाहें, आप जज बन सकते हैं, कोई आपको नहीं रोक सकता, वकील बन सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। आप दुनिया के हर ऊंचे ओहदे पर फायज हो सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए मैं अपने अजीज तलबा से भी कहूंगा, हर मैदान में अपने आप को आगे बढ़ाओ। इस्लाम ने किसी भी तालीम से मना नहीं किया, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो। मैथमेटिक्स का भी तस्करा कुरान पाक में मौजूद है। आपको मालूम होना चाहिए, ज़कात फर्ज है, साल में एक मरतबा साहिब निसाब मुसलमान पर। आप ज़कात कैसे निकालेंगे अगर परसेंट नहीं आता है, मैथमेटिक्स नहीं जानते हैं? 100 रुपए में 2.5 रुपए, 2.5% ज़कात फर्ज है, आप कैसे परसेंटेज निकालेंगे? पता चला कि और उसूल फ़िक़्ह का कायदा है, हजरत बैठे हुए हैं, माला यतिमुल वाजिबु इल्ला बिही फहुवा वाजिब। हजरत ये कायदा उसूल फ़िक़्ह का कि वाजिब तक पहुंचने का जरिया जो चीज बनती है वो भी वाजिब हो जाती है। पता ये चला कि ज़कात अदा करने में हम मैथमेटिक्स और रियाजी और हिसाब के मोहताज हैं, तो रियाजी और इल्म हिसाब का भी जानना फर्ज और वाजिब है। मेरे दोस्तों, इसलिए अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, अपनी लड़कियों को हर मैदान में आगे बढ़ाओ। कौन कहता है कि इस्लाम में औरतों को आज़ादी नहीं? अरे इस्लाम ने जितना औरतों को आज़ादी दी है, किसी ने आज़ादी नहीं दी। कहा कि अगर वो बेटी है तो घर की रहमत है, बहू है तो जीनत है, अगर मां बनकर आई है तो उसके कदम के नीचे जन्नत है। कदम के नीचे जन्नत अल्लाह ने किसी मुफ्ती के कदम में नहीं रखा, किसी शेखुल हदीस के कदम में नहीं रखा, किसी पीर साहब के कदम में अल्लाह ने जन्नत नहीं रखा। तेरी मां बूढ़ी है, काली कलोटी है, अपाइज है, बिस्तर में लेटी है, दम्मा की जो है मर्ज में मुब्तला है, लेकिन तेरे लिए अगर तू बेटा है, तेरे लिए जन्नत उसी मां के कदम के नीचे है। इसलिए अपने वालिदैन को राजी करना यह हम सब का फर्ज है। इस इदारे में क्या सिखाया जाता है, वालिदैन के साथ कैसा सुलूक होना चाहिए, इस इदारे में क्या सिखाया जाता है, यहीं से आपको इंसानियत का दर्स दिया जाता है। इसी मदरसे से दर्स दिया जाता है कि हमें हिंदुस्तान से भी मोहब्बत होनी चाहिए। इसलिए किसी शायर ने कहा कि हम अपनी रहनुमाई के मिलेगी मंजिल मकसूद, हम ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के वास्ते कुरान रखते हैं। वतन से हो मोहब्बत, यही इस्लाम कहता है, वतन से हो मोहब्बत यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। जाहिर सी बात है, एक मुसलमान मरता है इसी मिट्टी में दफन होता है। कुरान में कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया है, इसी मिट्टी के जर्रे से बनाया है। व फीहा नुईदुकुम, इसी कब्र में हम तुम्हारे दोबारा ले जाएंगे और फिर मैदान महशर में
इसी हिंदुस्तान की मिट्टी से हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम मुसलमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदा करेगा। इसीलिए हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानी दी थी ताकि इस मिट्टी से हमें जो मोहब्बत है, जो प्यार है, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन हिंदुस्तान की मिट्टी को गोयाई की ताकत दे, बोलने की सलाहियत दे, हिंदुस्तान की मिट्टी के जर्रे जर्रे से ये आवाज आएगी कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, यहाँ के अगाबरीन ने, यहाँ के मुजाहिदीन आज़ादी ने, फ्रीडम फाइटर्स ने अपने खूने जिगर को बहाया है, अपने लहू को बहाया है। आज भी यहाँ की सरजमीन ये गवाही देगी, इस हिंदुस्तान की सरजमीन के जर्रे जर्रे पर मुसलमानों का हक है। मेरे दोस्तों, हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके कब्र को नूर से मनव्वर फरमाए, अल्लाह उनके गरी के रहमत फरमाए, अल्लाह उनके तमाम सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमाए। उन्होंने कहा था ये मदरसा जो है इल्म की जो है ट्रांसफार्मर की तरह है। जिस तरीके से एक पावर हाउस बिजली घर से एक बिजली सप्लाई की जाती है, आप उससे कूलर भी चलाते हैं, पंखे भी चलाते हैं, फ्रिज भी चलाते हैं, वॉशिंग मशीन भी चलाते हैं, उसी तरीके से जब ये इल्म आएगा आप जज की कुर्सी पे फायज होंगे। अगर आपके अंदर कुरान और इल्म दीन की तालीम होगी, आपका कलम इंसाफ के साथ चलेगा, आप वकालत करेंगे, वकील की कुर्सी पर होंगे। जब एक पिसा हुआ मजदूर, एक गरीब इंसान आपके साथ आएगा, एक दबा कुचला इंसान आपके पास आएगा, तो आप उससे ज्यादा पैसा नहीं ऐठेंगे, बल्कि सही इंसाफ के साथ, चूंकि आपके दिल में खौफ खुदा, खशियत इलाही और तकवा है, तो इसीलिए कुरान ने बार बार तकवे पे जोर दिया है। मेरे दोस्तों, ये लड़कियों का इदारा, आपको मालूम है सहाबियात, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत बैठे हुए हैं, और उलमा इकराम के हवाले से मैं कहूंगा अपने वक्त की सबसे बड़ी मुफ्ती वो काजिया हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा है। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजियत में अक़्दे निकाह में रहते हुए ऐसे ऐसे पर्दे के मसाइल आज औरतों को दिए। तहरत के मसाइल क्या होंगे, हैज़ के मसाइल क्या होंगे, निफास के मसाइल क्या होंगे, विलादत के मसाइल क्या होंगे, हम बिस्तरी के तरीके क्या होंगे, यहां तक हदीस में बताया। बल्कि हमें फख्र होना चाहिए, आज हम हाफिज होने पे, आज हम आलिम होने पे शर्महार महसूस करते हैं। हजरत सलमान फारसी से किसी ने कहा था, अरे तुम्हारे नबी तो तुम्हें पेशाब पाखाने का तरीका सिखाते हैं। सलमान फारसी ने जुरत व बहादुर के साथ कहा था, हाँ हाँ हमें फख्र है, ये हमारे नबी हैं जो हमें पेशाब पाखाने का तरीका भी सिखाते हैं। मेरे दोस्तों, एक मर्तबा सहाबी हुज़ैफा बिन यमान एक शाही दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, कुछ दस्तरखान पर निवाले गिर जाते हैं, वो उठाकर दस्तरखान से खाने लगते हैं। दूसरे साहबी कहनी से उनको इशारा करते हैं, आपको मालूम नहीं ये शाही दस्तरखान है, आपको मालूम नहीं आप राजा के दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, यहां दस्तरखान से निवाला उठाना जो शर्मआर की बात है। उस वक्त उस साहबी ने कहा, आतरुकु सुन्नत हबीबी लिहाउलाइल हुमका, क्या मैं अपने नबी की सुन्नत को इस अहमकों के लिए छोड़ दूं? मैं अपने नबी की सुन्नत से प्यार करता हूं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इस मदरसे का आमना लिल बनात का, दारुल अब्दुल है का यही मैसेज और पैगाम है कि यहाँ इल्म दीन सिखाया जाता है। हम अपने बच्चों को यहाँ इल्म दीन से रोशनास कराएं, और इल्म दीन जब उसके सीने में बिठा दिया, ईमान और कुरानियात का इल्म दे दिया, अब वो दुनिया में उसको कोई नहीं बहका सकेगा। यही मैसेज और यही पैगाम था। अपने बच्चों को पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें, बगैर पढ़े अब गुजारा नहीं। हर मैदान में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा कि कुरान करीम की ये महफिल है, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला है क्या, ये कुरान में पढ़ो। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।